Good morning, dear students. This is your teacher Neelam Elawat, and we are doing the chapter 3, Synthetic Fibers and Plastics. In the previous module, dear students, we have discussed the different types of fibers, isn't it? We know that fabric is made up of fibers, and there are two kinds of fibers. One is a natural fiber. Second is a synthetic fiber, right? Now in this particular slide, in this particular video, dear students, we will discuss about the different types of synthetic fibers. Okay? See, we will discuss the 4 basic examples. The first example that we have to discuss here is rayon. Okay, rayon is a synthetic fiber. Second is nylon, third is polyester, and the fourth is acrylic. Okay, we will discuss these 4 synthetic fibers. Now in this particular class, dear students, we will discuss the first 2, 1 and 2 only. That is rayon and the nylon. Okay, so let's start with rayon. Rayon, dear students, it is the first fiber that was artificially manufactured. Rayon जो है बेटा, ये सबसे पहला फाइबर है जो बनाया गया था. So this is the first man-made fiber or artificially made fiber, and that is why it is also called as laboratory first gift to the loom. ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले बनाया गया था, तो हम इसका नाम जो सबसे जाना जाता है, famously it is also called as laboratory's first gift to the loom. Okay, and this is less expensive. ये सस्ता भी होता है, सिल्क के कंपैरिजन में ये काफी सस्ता होता है, एंड इसकी प्रॉपर्टीज जो हैं बेटा वो आर्टिफिशियल सिल्क से बहुत मिलती हैं. Its properties resemble that to that of silk, so that is why it is also called as artificial silk. Now how it is prepared? तो rayon जो है बेटे, it is prepared from cellulose. ये cellulose से prepare होता है, और इस cellulose को हम wood pulp से obtain करते हैं. Wood, you know, लकड़ी, right? उसके pulp cellulose को extract करते हैं और उस cellulose से हम rayon बनाते हैं. So क्योंकि इसको बनाने में plant, so that is why it is also called as semi-synthetic fiber. What do we call it as? Semi-synthetic fiber. हम इसको semi-synthetic fiber भी बोलते हैं, semi-synthetic fiber भी कहते हैं. ठीक है? So let's repeat it. First, it is the artificially manufactured fiber. It is it is less expensive. It is also called as laboratory's first gift to the loom. Its properties resemble to the silk, so we call it as artificial silk. And this material is prepared, right? Rayon is prepared from cellulose, which we get from the wood pulp. Okay? Let's come to the uses. Okay, or the advantages. What are the advantages of rayon? Rayon जो है बेटा, it is less expensive than silk. Rayon और silk की properties, look जो है वो बहुत ज़्यादा same होता है. They look alike, but rayon is less expensive than silk. Secondly, ये moisture को absorb कर लेता है, means sweat को absorb कर लेता है, and it is very comfortable to wear. Third very important characteristic जो rayon की है बेटे, it blends well with other fibers. आप इसे अलग और fibers के साथ blend कर सकते हैं, mix कर सकते हैं, and it can be easily woven with them. फिर आप उससे कुछ भी बुनाई कर सकते हैं. And most important, it can be dyed in different colors. मतलब आप rayon को different colors में dye कर सकते हैं, and it will give you vivid and beautiful colors. Okay, so these 4 advantages of rayon. Now because advantages, it is extensively used. बहुत ज़्यादा इसकी uses होती हैं, और
सिल्क से सस्ता है, इसलिए सिल्क जहां जहां पर सिल्क यूज होता है इट कैन रिप्लेस सिल्क देयर। तो अब जहां ये यूज होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडस्ट्रीज में कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज होता है। लाइक ये जैकेट्स बनाने के काम आता है, ट्रैक सूट्स बनाने के काम आता है, स्कर्ट्स बनती हैं, ब्लाउजेस एंड टाइज बनाई जाती हैं विद द हेल्प ऑफ रेयॉन। ठीक है। अदर देन दिस डिस्पोजेबल डायपर्स बनाए जाते हैं रेयॉन से। सर्जिकल प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, लाइक बॉलिंग, आपकी जो बॉल्स होती हैं वो बनाते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म बनती है, राइट। इसके अलावा काफी फर्नीचर्स भी बनाए जाते हैं, स्लिप कवर्स बनाए जाते हैं, बेड शीट्स बनाई जाती हैं, बेड स्प्रेड्स बनाए जाते हैं, ब्लैंकेट्स बनाए जाते हैं रेयॉन के। ओके, सो रेयॉन हैज विविड यूजेस, बहुत ज्यादा यूज में लाया जाता है रेयॉन। एनी डाउट बेटा सो फार? ओके, सो जो सेकंड फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज नायलॉन। सेकंड जो सिंथेटिक फाइबर है बेटा वो है नायलॉन। नायलॉन जो है बेटा, इसके लिए जो हमें मटेरियल्स चाहिए प्रिपरेशन के लिए, इट इज मैन्युफैक्चर्ड, इट इज मेड फ्रॉम कोल एंड पेट्रोलियम। सो दो बेसिक रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है नायलॉन को बनाने के लिए, एक है कोल, एक है पेट्रोलियम। ओके, now let's discuss few characteristics of nylon. Nylon जो है बेटा, it do not crease easily. Crease easily means, बताओ बेटा, इसमें wrinkles नहीं पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर? इट इज वेरी वेरी इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड लाइटेस्ट फाइबर। ये जो फाइबर है बेटा बहुत ज्यादा लाइट होता है, इलास्टिक होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसे डाई करना बहुत आसान होता है, मतलब वी कैन डाई इट इन डिफरेंट कलर्स। और ये वाटर को ज्यादा डज नॉट अब्सॉर्ब वाटर, वाटर को एब्सॉर्ब नहीं करता, इसलिए बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड जो सिंथेटिक फाइबर हमारा है वो है नायलॉन, और इसको बनाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है कोल और पेट्रोलियम। सो इंडस्ट्रीज में बनता है और हमें दो रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है जिनको हम कहते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, एंड क्योंकि इसकी एडवांटेजेस हैं तो ये भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नाउ कमिंग टू सम ऑफ द यूजेस ऑफ नायलॉन। देखिए बेटा, नायलॉन जो है वो टूथब्रश के ब्रिसल्स बनाने में काम आता है, कार्पेट्स बनाने में काम आता है, सॉक्स, बैग्स बनाने में काम आता है। वाई? बिकॉज इसकी जो स्ट्रेंथ है बेटा वो बहुत ज्यादा होती है, इट हैज अ वेरी हाई स्ट्रेंथ, और इसका है फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसमें रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। ठीक है, एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग रोप्स। इस नायलॉन को यूज करके बेटा रोप्स बनाई जाती हैं, एंड दोज रोप इन पैराशूट मेकिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग। तो जो रोप आप घर में यूज करते हैं या जो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए यूज करते हैं वो नायलॉन से बनी हुई होती है। पैराशूट्स में भी जो रोप्स यूज होती हैं वो नायलॉन से बनी होती हैं। तो आप जस्ट अंडरस्टैंड हाउ मच स्ट्रेंथ दिस हैज। देखिए कितना मजबूत। Okay, I hope both the two synthetic fibers, rayon and nylon. किसी को डाउट है बेटा? तो आज हमने दो डिस्कस किया है, one is rayon, another is nylon. Okay, so let's come to your homework. First of all, you will make notes of this topic and you will read the page numbers 39 and 40. And if there is any query, you will send your queries to me, right? Okay, bye everyone.